guys, welcome back to my channel. So today is day 32 of our coding challenge. And guys, yeah, I was trying the question which I trying to do it, which is Mbukits wala. And guys, I try to solve that questions, and yeah, I understand it. I understand today that question very deeply, and I think that question yeah, I understand better that questions because I try to solve, I try to make the conditions, I try to implement it. What is the problem I faced in that question? I do not I face problem on implementation of that questions, not in terms of understanding. So I try to implement that code, and मैंने जहाँ तक है उसको implement कर दिया है, but there's some issue in that situation. But I already give 2 hours to that problem. I don't want to give like more than 2 hours to that problem because time limit is also important for us. So we can't give too much time on one questions, and because I already put a struggle on that question, I think I have to see solution. I just take times to make video, like it's my break time also, and I just guys talk to with you and just describe what I did. And yeah, now I have to do problem, and उसको मैं करूँगी अभी अभी relax after half an hour I do that problem, and I just understand the solution approach. What I like this the how there's a technique to see a solution, like not see a solution, just ask ChatGPT what is the difference between my thought process and the actual क्वेश्चन या फिर एक्चुअल जो ब्रूट फोर्स है उसके थॉट प्रोसेस में. सो उससे आपको पता लगेगा इन विच एरिया यू लैग बिहाइंड. ओके, सो सो दिस इज सो करते रहो क्वेश्चन, एंड ऑलवेज बी फॉलो राइट अप्रोच टू डू अ क्वेश्चन, because I have to, like, I thank, like, I do not which should I have to thank, बट आई थैंक टू समवन हु इज़ लाइक मतलब यूट्यूब पे अब इतना कंटेंट है ना कि आपको पता लग जाता है. लाइक when I just started to learn DSA, I made a big mistake, like directly jumping to solution without thinking about the approach. Even I already understanding the concept. I just directly see solution, which was I made, which mistake is very bad I made, and that was I was very frustrated at that time. But now I just do not say a solution directly, I just wait. And so almost about 1 month is already passed. Okay, I do not see solution directly, and yesterday I faced a problem in which rearrange array sine where I see solution directly and I do not have to see solution. So yesterday I put struggle on that question, and if do not that question answer would be not clear, I just say the solution, understand it deeply, not just code it up, not just mark up the solution. Understand that approach clearly, and that is how we learn, that is how we grow, I think, in my terms. And revision is very important. Okay, you need to only do limited question, but do new variation of question and revise that question again and again, because whenever you revisit that question again, you find out new things in that question. It is these things occurring same and same. It has happened again with me. I don't know how, but it is like the understanding of the question. I try to solve a problem again, like when I'm thinking about it, I'll just tell you, like I'm try to see the solution and understand from that. But when I try to, I'm not seeing the solution directly. What I do, like I give the prompt to ChatGPT, like check what is the difference between of my intuition of my thinking process and actual the questions. So he said, ChatGPT ने बताया कि या दिस इज़ द प्रॉब्लम रियली, सो आई अंडरस्टैंड. ठीक है, स्टिल उसके बाद उसने बताया, एंड उसने सिर्फ बताया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ये है. मैं उसके बाद भी नहीं समझी. मैंने मना कर दिया कि मैं सॉल्यूशन नहीं देखूँगी, मैं तो खुद से समझने की. पता लगा कि ये आइडिया ये यूज़ हुआ है, तो मैं उसको ट्राई, उसके बाद भी वो नहीं समझ में आया. मैंने 1-2 घंटा दिया तब जाके वो क्वेश्चन समझ में आया, विच इज़ लाइक ये मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू Mbukit एजुकेशन है बेसिकली. तो इसमें मतलब दिस इज क्वेश्चन इज़ नॉट
मतलब इतना भी मतलब इजी बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चंस होते नहीं हैं जनरली मीडियम लेवल। मतलब मीडियम लेवल मैं ये नहीं कहूँगी सारे हार्ड होते हैं, अपने लेवल पे डिपेंड है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई। मुझे ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा जनरली। और कोकोइटिंग बनाना वाला तो छोड़ ही दो, बस उसे तो मतलब बाद में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, धीरे समझ में आने लगा, बट आज मैंने इसको टाइम दिया 2 घंटे। तो ये होता है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखो, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मैंने इसको समझा, 2 घंटे टाइम दिए एटलीस्ट, तब जाके मुझे हिंट मुझे समझ में आने लगा। हाँ हाँ, दिस इज़ द हाउ द क्वेश्चंस विल डू, हाउ द आंसर्स विल बी क्रिएटेड, एंड ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इंट्यूशन ऐसे बिल्ड होती है, लाइक मुझे नहीं पता ऐसे बिल्ड होते हैं, बट थिंकिंग प्रोसेस ऐसे वर्क करता है मेरे हिसाब से। तो लाइक या सो अब मैं क्या कल मुझे क्या पता उसके बारे में सॉल्यूशन कर लूँ। मुझे 2 days हो गए टू ऑन स्पेंड ऑन दैट क्वेश्चन, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज बी ग्रेटर। नेवर सी सॉल्यूशन डायरेक्टली, इट इज़ वेरी बैड थिंग। एंड अब पढ़ा था, देन उसके बाद मैंने एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस लगाए 1 घंटा। अब मैं गाइस रिवाइज करूँगी अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम विच इज़ रीअरेंज अरे बाई साइन वाली, मुझसे नहीं हुई थी। आई ट्राई इट, हाफ एन आवर में ट्राई करूँगी। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर नहीं हुई तो हम वी चेक, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वाई वी आर नॉट अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, वी चेक इट, ओके। एंड देन हाउ वी, सो यही एक ही तरीका है क्वेश्चंस को करने का, इफेक्टिवली करने का, और ज़्यादा क्वेश्चंस में जगलिंग भी बंद नहीं करने का। और यू ओनली नीड टू हैव डू easy to medium questions, and there is no need to do hard questions for now, because until you are not practicing 6 month, आपकी 6 month तक प्रैक्टिस नहीं हुई है, यू can't शिफ्ट टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस। और मीडियम लेवल क्वेश्चन से जनरली उनका होता है इतना, इतनी कंपनी पूछती है मीडियम लेवल तक, मीडियम टू हार्ड तक चला जाता है, उसकी फॉलो अप पूछ लेंगे। सो ऑलवेज ध्यान रखो, नेवर सी सॉल्यूशन। एंड मैं भी कोशिश करती हूँ, ये हरकतें मैंने पहले गलती करी थी कि डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लेती थी, मतलब ऐसे नहीं बनते क्वेश्चंस। एंड guys who are solving the questions, I suggest you, please guys, do not see solution directly, or make sure you give 1 hour at starting. If you are starting out, you have to give 1 hour 2 hours to that problem, thinking about it. Not I do not say about easy level, easy level gives 1 hour, on medium level you give 2 hours at starting. मैंने तो बहुत ज़्यादा दिन दिए थे। एंड या एरे के में मैंने दिए थे, टाइम दिया था, एरे के में भी मैंने बहुत ज़्यादा दिन दिए थे, मतलब टाइम दिया था जब जाके किया था मैंने। एंड अब मैं बाइनरी सर्च कर रही हूँ, एंड कोई बात नहीं, करते हैं जैसा होता है, एंड वी मूव लाइक दिस। सो या अब हम रिवाइज करेंगे प्रीवियस प्रॉब्लम। मैंने अभी क्वेश्चन किया था विच इज़, हाँ, सो जो क्वेश्चन था ना रीअरेंज अरे बाय साइन, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली भाई आई एम नॉट, मैं जो लग रहा था मुझे कि मैं रट्टा मार रही हूँ इस क्वेश्चन का, आई थिंक दैट इज़ नॉट द थिंग। तो मैं यह सोच रही थी कि उसको मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन में कर दूँ, बिकॉज वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ले रहा था उस वाले ब्रूट फोर्स में। तो मैं वो सोच रही थी, बट दैट इज़ नॉट, हम नहीं कर सकते उसको स्पेस कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ एन में, वी कांट डू इट। हाँ मतलब बिग ऑफ वन में नहीं कर सकते स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो बट मैं कल भी मैंने सोचा था कि मैं टेम्परेरी लेके कर दूँ, बट मैंने सोचा कि हाँ, बट मैं उसको वन में करना चाहती थी, बट ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते। थैंक गॉड मैंने आज सॉल्यूशन भी नहीं देखा, मैंने बना ली वो खुद। एंड या और उसके बाद मैंने ट्राई करी काउंट अकरेंस वाली, एंड आज अमन भैया का सेशन आ रहा था, तो मैंने वो देख लिया। एंड बट अपने टारगेट्स कंप्लीट करते रहो। मैंने काउंट अकरेंस वाला क्वेश्चन कर लिया था एंड या गाइस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बट मेरा वो क्वेश्चन एम बुकेट्स वाला अभी तक नहीं हुआ सॉल्व, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, मैंने उसको समझा, एंड आई होपफुली मैं कल उसको कर लूँ। आप कहोगे 2 दिन से चल रहा हो क्वेश्चन, गाइस अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी बैड, ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। ये भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते किसी क्वेश्चन पे, बट दैट क्वेश्चन इज़ रियली टफ। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा टफ है। अगर मैंने
डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया, उसको कोड टॉक कर लिया, मेरे लिए मुश्किल होगा आगे लॉजिक बनाना, एंड आई डोंट वांट दैट। एंड हमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इफ़ इट क्वेश्चन टेक टाइम, रिवाइज प्रीवियस प्रॉब्लम, जस्ट उसको समझने की कोशिश करो धीरे 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 धीरे, ठीक है। एंड देन फाइनली अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आज कुछ समझ लिया, बस इतना सा माइनर डिफरेंस रह गया, मैंने समझ ही लिया उस क्वेश्चन को। समझने का मतलब ये नहीं होता कि आप देख के समझ लो कोड को, आप खुद अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है पैटर्न, तो उसको अप्लाई समझने की जितनी करोगे कोशिश उतना अच्छा। और किसी किसी क्वेश्चन में लाइक जो काउंट अकरेंस वाला क्वेश्चन था, उसमें पता है मैंने क्या गड़बड़ करी थी पिछले बजे में, उससे नहीं हुआ था। एक्चुअली जो काउंट अकरेंस वाला था ना, इसमें एक चीज़ यूज़ होती थी, लाइक आप फर्स्ट अकरेंस निकाल रहे थे, लास्ट अकरेंस, मुझे मतलब ये पता था कि सॉर्टेड एरे है ये, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया अगर ये सॉर्टेड एरे है तो इसकी फर्स्ट और लास्ट निकल के हमें इसका वो मिल जाएगा कि इसकी कितने टाइम ये करवा है। सो इसमें एक पैटर्न यूज़ होता है, मतलब पैटर्न बताइए मुझे क्या है, मैं इसको पैटर्न बोल देती हूँ। लाइक एक सब एरे सम कुछ लेंथ वाला क्वेश्चन था, लेंथ सब टू के, उसमें हम वही आई और जे कर रहे थे और ऐसे +1 करके हमें वो बीच की वैल्यू मिल जाती थी। तो ऐसे ही मुझे सेम इसमें लगा था, तो आई थिंक मुझे ऐसे लगा कि हाँ इसमें भी कुछ ऐसा यूज़ हो रहा है। सो या किस किसी क्वेश्चन में होता है कि इतना वो यूज़ नहीं हो रहा, आपको एक फॉर्मूला ट्रिक पता होनी चाहिए। एंड या सो it is guys, and we completed our day 32 challenge, and guys we will tomorrow, and you can also study DSA, and yeah guys, okay, do hard work in your life because life would be, मैं चेक रियलिटी नहीं देना चाहती ज़्यादातर, चेक रियलिटी बोलते क्या बोल रही हूँ यार मैं, रियलिटी चेक, रियलिटी चेक, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन का तरीका हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, मेरी उल्टे वर्ड्स हो रहे हैं। सो इट्स ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट सून। ये मैंने इसलिए बांध रखा है, आई हैड, मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से। ओके सो okay guys, see you tomorrow, and stay happy, stay healthy, study regularly, stay consistent in your journey, and you will achieve more, and I'll also achieve more. So bye bye.